What does it mean to live a life of righteousness, compassion, and selflessness? Our exploration today centers around the life and teachings of a man who has dedicated his existence to these very principles. Acharya Dr. Krishna Mohan Ji Maharaj. Born into a devout family, Acharya Dr. Krishna Mohan Ji Maharaj demonstrated an early inclination towards spiritual matters. Guided by his revered guru, Swami Karapatri Ji Maharaj, he embarked on a journey of self-discovery that would shape not only his path, but also the lives of countless others. His academic journey led him to delve deeply into the realm of philosophy, earning a doctoral degree with a specialization in Vedanta. This blend of ancient wisdom and modern insights has made him a sought-after speaker and teacher, with seminars, workshops and discourses on Vedanta, Bhagavad Gita and spiritual philosophy resonating with audiences across the country. The breadth of Acharya Dr. Krishna Mohan Ji Maharaj's work extends beyond spiritual teaching. As the Secretary of Sevadaya Shiksha Samiti, based in Bhopal, he manages various educational and social welfare projects aimed at uplifting the underprivileged sections of society. His leadership has seen the implementation of initiatives focusing on education, healthcare, and community development. In addition, he is a respected member of the Akhil Bharatiya Samiti, a prestigious organization committed to promoting cultural heritage, spiritual values, and national integration. Through his active engagement, he contributes to fostering harmony, peace, and social cohesion in the diverse fabric of India. The teachings of Acharya Dr. Krishna Mohan Ji Maharaj emphasize the universality of spiritual truths. He champions a life of righteousness, compassion, and selflessness, inspiring his disciples and followers to cultivate virtues such as humility, gratitude, and forgiveness. His guidance encourages service to humanity with love and devotion. In summary, the life and teachings of Acharya Dr. Krishna Mohan Ji Maharaj offer a path towards spiritual enlightenment and societal harmony. Through his unwavering dedication to spreading peace and love, his contributions to education and social welfare, and his active role in promoting cultural heritage and national integration, he continues to touch and transform lives. For those interested in spiritual guidance or attending the discourses and events conducted by Acharya Dr. Krishna Mohan Ji Maharaj, please reach out to Shraddha Dham Ashram. The transformative journey awaits. जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारी शिक्षा दीक्षा मध्य प्रदेश भोपाल और कुछ महाराष्ट्र, तो कई विषय से एमए और पीएचडी, बीएमएस, शास्त्री, आचार्य, ये सब हमने शिक्षा ग्रहण किया। और इस शिक्षा में सहयोग जो हुआ वो घनश्याम दास बिरला के एक रिश्तेदार श्री राम दुर्गा प्रसाद सराफ, तुमसर भंडारा गोंदिया साइड के, उन्होंने कहा कि हम आपको पढ़ाएंगे। और वो हम उनसे संपर्क हमारे दादा गुरु पंडित सुरेश दत्त जी से था। वो बहुत मानते थे, वो बड़े तपस्वी थे और बहुत संस्कारित उनका जीवन था। रोज़ यज्ञ करते थे और उनका स्नेह चारों शंकराचार्य, करपात्री जी, स्वामी निरंजन देव तीर्थ, इनसे रहा। और उनकी ही प्रेरणा से मैं स्वामी करपात्री जी का मतलब उनका स्नेह हमको प्राप्त हुआ। और हमारे दादा गुरु ने कहा कि करपात्री जी की सेवा करो, उनका चरण दबाओ। तो हमने उनका पैर जो है दबाया और उन्होंने कुछ खास चीज़ें साधना की बताई, जो कि मैं आज करता हूं। और उन्हीं का दिया हुआ नियम, उन्हीं का दिया हुआ वस्त्र मैं धारण करता हूं। और ये हमको कक्षा 8वीं से लेकर के आज तक वो नियम और वो संयम करते हुए चले आ रहे हैं। कुछ भगवान की ऐसी कृपा रही कि डोंगरे महाराज के साथ रहने का सौभाग्य मिला, उनकी कृपा रही। और वो हमारे सिर पर हाथ फेरते थे और कहते थे, जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशय। संसार की हर सिद्धि में संशय है, डाउट है, लेकिन जप की सिद्धि में कोई संशय नहीं है, इसलिए जप करना चाहिए। और गायत्री का भी उपदेश देते थे कि गायत्री जप करना चाहिए। हमारे हनुमान जी, जपत निरंतर हनुमत बीरा,
राम जी का नाम हमेशा जपते रहते हैं। और हमारे यहाँ भगवान गीता में कहते हैं अध्याय 10 में, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। तो जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशया, ये हमारे जीवन का लक्ष्य रहा। और साधना किया, न कोई नौकरी किया, न कोई व्यापार किया, न किसी के यहाँ कोई पांडित्य कार्य किया। और जितने भी तीर्थ हैं सब में जाता हूँ, और जितने बड़े यज्ञ हैं, बड़े कार्यक्रम हैं, धार्मिक आयोजन जहाँ हैं वहाँ भी जाता हूँ। और जितने कुंभ पड़ते हैं पूरे हमारे देश में, सब कुंभ अटेंड करता हूँ। संतों का सानिध्य है, विद्वानों का सानिध्य है, और तपस्वियों का सानिध्य है। मैं ये पूछता रहता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कौन विद्वान है। जैसे राम किंकर जी के साथ मेरा रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, देवराहा बाबा के साथ 2 दिन का सहयोग मिला रहने का, डोंगरे महाराज का लंबे समय से रहा, आचार्य श्री राम शर्मा जी के साथ वर्षों का रहा। जब मैं साधना तपस्या करता था, परमार्थ के पास भारत माता मंदिर है, वहाँ बांध के उस पार गंगा जी का स्थान है, गौशाला है। वहाँ मैं रात्रि में 12 बजे एक गंगा जी के किनारे बड़ा पेड़ था पीपल का, उस चबूतरे पर गाय का गोबर और गंगा जल से लिपाई करके, शेर की खाल बिछा करके और पूरी रात साधना करता था। और सुबह उठ के आता था तो वहाँ एक स्थान था नरसिंह मंदिर, वहाँ योगीराज जी महाराज थे, बड़े अच्छे संत, बड़े अच्छे तपस्वी। पूरा हरिद्वार और ऋषिकेश उनको मानता था, उनके चरणों में प्रणाम करता था। ऐसे योगीराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, और उसके बाद फिर उन्होंने जो बताया वो नियमित करता। आजकल का जो युवा पीढ़ी है जी, उनके लिए आपका संदेश क्या है? जी थोड़ा बताइए। जी, हम ये चाहेंगे, सरकार से भी चाहेंगे कि जो शिक्षा नीति है इसमें उन्हें सुधार करना चाहिए। जो हमारी प्रणाली थी पहले, उससे विद्वान बनते थे, संस्कारवान बनते थे, चरित्रवान बनते थे, और हर चीज़ में उनके गुण स्वभाव, जैसे एक कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोभिसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। ये हमारी शिक्षा थी, और गुरुकुल की शिक्षा थी, और नैतिक शिक्षा, नैतिक का पाठ जो है पढ़ाया जाता था। बच्चों को शुरू से संस्कार डाल दिया था। जैसे अब हमारे यहाँ स्वामी विद्यानंद जी के यहाँ बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। अब सवेरे ही जो है मैं 3:30 पौने 4 पे उठा हूँ, थोड़ा अपना नियम करके मैं नीचे गया तो महाराज जी ने बच्चों को जो संस्कार, छोटे छोटे बच्चे जो संस्कार दे रहे हैं, ये जो है उनके जीवन भर के लिए एक अमिट छाप हो जाएगा। जैसे छोटा पौधा है, उसको बचाने के लिए किसी लकड़ी का सहारा लगा दिया जाता है और पौधा ऊपर चला जाता है, निकल जाता है, सुरक्षित हो जाता है। उसी प्रकार ये जो नए पौधे हैं, नए बच्चे हैं, आने वाले भविष्य हैं, इनको सुंदर संस्कार अगर शुरू में ही दे दिया गया तो इनका संस्कार दृढ़ हो जाएगा। जैसे मान लो मोदी जी को मान लीजिए या योगी जी को मान लीजिए, ये आज मान लो मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं होते तो बहुत जोरदार बड़े अच्छे संत होते, तो उनका जीवन संतों के साथ रहा, उनका संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, इसलिए उनकी विचारधारा भी भारत के प्रति अच्छी है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि ये जो अंग्रेजी नीति चल रही है, मार्क्स वाली और क्रिश्चियन धर्म वाली जो होती है, इसको थोड़ा सा उन्हें बदलना चाहिए और हमारी भारतीय सभ्यता, सनातन संस्कृति और देव पद्धति और गुरुकुल पद्धति को लागू करना चाहिए, किसी रूप में लागू करना चाहिए, जिससे आने वाली जो संतान है, जो फसल है, वो जोरदार हो। ऐसा बीजारोपण होना चाहिए, क्योंकि बीजारोपण जैसा होगा फसल भी वैसे होगी। इसलिए ऐसी फील्ड, ऐसी खेती, ऐसा खेत तैयार करना चाहिए जिससे बच्चों को जोरदार काम हो के कहा गया है, जहां में जब तू आया था और सभी हंसते तू रोता था, और बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोएं और तू हंसता जा। तो ऐसा काम कर जा कि लोग याद रखें। अब वो हमको संस्कार से, संस्कृति से, सनातन धर्म से मिलता है। इसलिए हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में ये नारा लगाया जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और विश्व का कल्याण हो। विश्व कामना के लिए, विश्व की मंगल कामना का कल्याण की ये नारे हमारे यहाँ भारत में ही दिए जाते हैं, है ना। तो भारत माता की जय हो, ये गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, है ना, गायत्री माता की जय हो। तो मंगल कामना, भगवान राम का जो जीवन है, बहुत थोड़े में समझिए आप, तो रा यानी राष्ट्र और माँ यानी मंगल। जो हमारी संस्कृति राष्ट्र का मंगल चाहती हो, वही सनातन धर्म है, वही भारत है, वही हिंदू राष्ट्र है।
प्रभु जी, आखिरी प्रश्न, जी, एक मुश्किल प्रश्न जी। हमारा जो देश में अभी जी, धर्म का परिवर्तन हो रहा है, जी, इसमें बहुत सारे कठिनाई हैं, हमको इसको कैसे सुधारें, कैसे आदमी लोगों को जन जागरण करें, इसमें आपका क्या जी, जी, राय है? इसमें जैसे एक वाक्य है, हर जगह आपको मिल जाएगा, पत्रों में, पत्रिकाओं में, पुस्तकों में, दीवालों में, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। बड़ा अच्छा वाक्य है आचार्य श्री राम शर्मा जी का। अगर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति अपने आप को समझ जाए और अपने संस्कार और संस्कृति और अपने चरित्र में स्थापित हो जाए, तो मैं समझता हूँ एक व्यक्ति से जुड़े हुए बहुत लोग हैं, तो कम से कम एक व्यक्ति अगर सुधरेगा तो और लोगों को सुधारेगा। छां तू वाकी बैठिए जो तर मोटो होए, और पत्ता जो झड़ जाए तब छाया में रहिए। तो आज के लोगों को, बच्चों को, नवयुवकों को अच्छे लोगों से, ये जो सत्संग है, ये जो संस्कार है, गुरु के पास जाना है और भगवान की बात सुनना है, गीता है, भागवत है, रामायण है, ये सब चीज़ जो उपदेश दिया जा रहा है और भागवत कथा के माध्यम से लोगों को दिया जा रहा है, इस कथा को भी आज के बच्चों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय, सारा कुछ पढ़ते हुए कोर्स का, उसके अलावा भी उन्हें अपना स्वाध्याय करना चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही हमारी संस्कृति है, क्योंकि संस्कार जब रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। और उनको हमारी जो भारतीय पद्धति की जो शैली है, शिक्षा है, गुरुकुल की है, तो वो हमारे मनीषियों की है, उसे उन्हें जरूर देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि हमारे भारत में कैसे मनीषी हुए, कैसे विद्वान हुए, कैसे क्या कहते हैं, कालिदास हुए, सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, और मुस्लिम धर्म के भी कितने अच्छे संत हुए जिन्होंने भगवान पर बढ़िया चीज लिखा। उसमें रहीम है और रसखान है। तो रहीम रसखान ने भगवान कृष्ण की उपासना किया और अच्छा संदेश लोगों को दिया। तो इसमें सब धर्मों को चाहिए कि अच्छा संदेश दें और अच्छा कार्य करें, क्योंकि भारतीय सभ्यता और भारत के लोग सबका कल्याण चाहते हैं। इसलिए ऐसी शिक्षा लागू ना करें जिससे आने वाली जो हमारी भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, वो बिगड़े। और सरकार को भी चाहिए ऐसी शिक्षा पर थोड़ा कंट्रोल करें और उस पर नकेल लगाएं और हमारी जो शिक्षा है, पद्धति है, उसके लिए प्रयास करें और सब लोग उसको लगाएं। यही बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।